السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے مین مدے کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے اس پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ لوگ بڑے فخر سے جب کسی سیاسی بندے سے ملتے ہیں، جب کسی پاور ہولڈر سے ملتے ہیں، جب کسی ذمہ دار سے ملتے ہیں، جب کسی بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک سیلفی بنا لیں اس ذمہ دار کے ساتھ، اس بیوروکریٹ کے ساتھ، اس سیاست دان کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، یہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو سیاست دان کھڑا ہوتا ہے، یا اس وقت ان کے ساتھ جو ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے، یا اس وقت ان کے ساتھ جو پاور ہولڈر کھڑا ہوتا ہے، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ پاور، وہ زمین، وہ سیاست دان کا جو ٹھپا ہے، اس کو وراثت میں ملا ہو، یا پھر اس کو دو نمبری سے کرپشن سے مل گیا ہو۔ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے، اور پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ جدی پشتی ذمہ دار ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی کوئی محنت نہیں ہے۔ یا اگر کوئی بہت بڑا سیاست دان بن گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہوتی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ نچلے لیول کو کوئی بندہ جا کے آگے ٹاپ لیول کا سیاست دان بن جائے، یا پھر جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں انہی کے بچے ہی آگے جا کے بیوروکریٹ بنتے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں خاندانی چل رہی ہوتی ہیں یا کسی کی ایڈ پر چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن سپورٹس مین اور سپورٹس مین کے اندر جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں، جو لانگ رنر ہوتے ہیں، میرے خیال میں یہ شاید واحد کیٹیگری ہے جو کوئی بھی شخص وراثتی طور پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو آ کے گراؤنڈ میں نہ رگڑے، جب تک وہ اپنے آپ کو آ کے اپنا خون نہ بہائے، پسینہ نہ بہائے، درد برداشت نہ کرے، اپنی دماغی اذیت میں سے مسلسل نہ گزرے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ٹاپ لیول کا لانگ رنر یا ایتھلیٹ بن سکتا ہے۔ میں آج دل سے ان دو بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بڑا ہی فخر محسوس ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں لانگ رنر ہوں، گو کہ میں زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا، لیکن میں لانگ رنر ہوں، میں لمبی دوڑیں لگا لیتا ہوں، اور مجھے پتا ہے اس میں کتنی محنت لگ رہی ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب مسلسل آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ بھاگ، دماغ کہہ رہا ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے یار رک جا، یار رک جا، سکون پکڑ لے، لیکن پھر بھی ٹارگٹ جب نظر آ رہا ہوتا ہے تو انسان لگا پڑا ہوتا ہے، درد برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ میں ان کے درمیان بیٹھ کے آج دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں دو لیگل، دو ریئلسٹک محنتی بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو صرف بہاولپور کا نہیں، جو صرف ساؤتھ پنجاب یا پنجاب کا نہیں، بلکہ پورے پاکستان کا فخر ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب ان دونوں کے لیے خاص کلیپنگ کریں۔ سر، میں آپ دونوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے ٹائم دیتے ہیں، اور میں سچ بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، شاید شہباز بھائی کو، ریاض بھائی کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب سیاست دان بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، گو کہ ان کے پاس ٹھیکے کی زمین ہوتی ہے۔ میں کھولتا چلوں ساری بات، اچھے لیول کے سیاست دانوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں، ٹاپ لیول کے، ان کا ذمہ دارہ بھی بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود زندگی میں آپ نے میری کبھی کسی سیاست دان کے ساتھ، کسی بڑے ذمہ دار کے ساتھ، کسی بیوروکریٹ کے ساتھ تصویر نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ یقین کریں یہ نیچرلی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ تصویر بناؤں اور پھر اسے سٹیٹس پہ لگا دوں، جی دیکھو میں فلانے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن آپ دو کے ساتھ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے، اور اس کو میں پورا سپورٹ کروں گا، اور میرے ساتھ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ آپ کتنے محنتی لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری چیز، آفیشلی جو میں یہاں پہ اناؤنس کر رہا ہوں،
अपने दो कप्तानों के साथ बैठ के, कप्तान शहबाज और कप्तान रियाज के साथ बैठ के मैंने इन दोनों की इजाजत ली है, इन्होंने मुझे अलाउ किया है। उसके बाद मैं इस चीज का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम बहावलपुर के अंदर बहुत बहुत जल्द विद इन डेज एक एथलेटिक्स क्लब का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, यहां उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं और उस क्लब का नाम मेरे पाकिस्तान के इन दो टॉप लेवल के एथलीट्स के नाम पे होगा। शहबाज एंड रियाज या रियाज एंड शहबाज, वो इंशाल्लाह हम बैठ के तय कर लेंगे। इन दो के नाम पे हम पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास लेवल की एकेडमी बनाने जा रहे हैं। आप लोग सुन लें, आप लोगों को वेलकम करते हैं, आपको दावत देते हैं कि आप इन लोगों से आके सीखें। ये वो एथलीट है जिनके पास कोई सहूलियात नहीं है। आप पूछ लें, इनका बैकग्राउंड देख लें, नहीं है मुरब्बे इनके वालिदैन के, ब्यूरोक्रेसी से इनका ताल्लुक नहीं है। ये मेरी तरह ये भी बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सादा घराने से ताल्लुक रखते हैं, मेहनत की है और वो मेहनत नजर भी आई है। परसों रोडों पे पूरे बहावलपुर ने देखा है कि इन्हीं दो ने लीड किया है सबको। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आप दोनों को मुबारकबाद देते हैं कि आप पहली और दूसरी पोजीशन पे हैं। थैंक यू। और सर, मैं अब बारी बारी आप दोनों का ख्याल जानना चाहूंगा इस हवाले से, एकेडमी के हवाले से। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप कहां तक हमारा साथ देंगे? वीडियो पे आप बोल रहे हैं, आपने सोच समझ के बोलना है। हम आपको जो आप बोलेंगे हम आपको पकड़ लेंगे कल को, अगर आप छोड़ के जाते हैं, अगर वैसा नहीं करते। शहबाज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज अहमद है। तो इंशाल्लाह फुरकान भाई से पहले भी बात हुई थी 2-3 माह पहले, लेकिन तब नाम कुछ और था, लेकिन अब नाम कुछ और है। प्लानिंग भी कुछ और थी, लेकिन प्लानिंग अब कुछ और है। इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन मैं फुल सपोर्ट करूंगा। मैं भी इधर नहीं होता, रियाज भाई भी इधर नहीं होते, लेकिन फुरकान भाई से मैं कनेक्टेड रहूंगा। तो जो भी होगा प्लान इम्प्लीमेंट करना होगा स्टूडेंट्स पे, तो वो मुझसे रब्ता करके, रियाज भाई से रब्ता करके इम्प्लीमेंट करेंगे कि ट्रेनिंग कैसे करानी है। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम जॉब छोड़ के अपनी होम लैंड वापस आएंगे और फुरकान भाई की हेल्प करेंगे जहाँ जितना हमसे पॉसिबल हो सका। थैंक यू शहबाज भाई, थैंक यू। रियाज भाई प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगा फुरकान भाई, आपने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है, तो ये सिर्फ अपने बहावलपुर के नौजवानों के लिए डिसीजन लिया है ताकि ये आएँ और अपना जो है अपना आप दिखा सकें यहाँ पे। हमारे पास ऐसे भी लड़के हैं जो 3-3 4-4 माह ट्रेनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशनों में आ रहे हैं, पंजाब की पोजीशनों में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये सेटअप अच्छा बनेगा, इंशाल्लाह हमारा क्लब बनेगा, इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह नौजवान जो लड़के स्कूलों के, कॉलेजों के, वो आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे तैयारी करेंगे और जो है वो अपना नाम भी रोशन करेंगे और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, आगे जाके इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बाकी जो है आप सब आएँ, इधर क्लब का हिस्सा बने, हमारी तरफ से जो हम ताउन कर सके आपको पंजाब लेवल पे आपको अपने खर्चे पे भेजेंगे इंशाल्लाह। आप आएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, आपको हमारी तरफ से जो फैसिलिटीज़ हो सकी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे आपको। बाकी फुरकान भाई। अच्छा रियाज भाई, एक बात बताएं, उस दिन आपने दौड़ लगाई है, लोगों ने आपकी दौड़ देखी है, आपकी फिजिक देखी है, लोग आपकी फिजिक के बड़े फैन हैं। फिजिक फुरकान भाई ऐसे नहीं है ये कि 4 दिन ट्रेनिंग करके ये फिजिक बन जाए। शहबाज भाई बैठे हैं, सीनियर प्लेयर हैं। बाकी ये है कि मुझे 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल की मेहनत के बाद ये आपको फिजिक जो नजर आ रही है। और माशाल्लाह आके लगाते हैं यहाँ आपको कैंप में, बाहर जहाँ बाहर रोडों पे लगा रहे होते हैं इधर उधर, आपको ऑब्वियसली लड़कियां भी देखती होंगी, तो फिर आपके दिल में लड्डू भी फूटते होंगे, कुछ ऐसा महसूस करते हैं आप? नहीं फुरकान भाई, ये है कि लॉन्ग रेसर जो होता है ये मलंग टाइप इंसान होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता लोग इसे देख के क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई ये इतना सा कमजोर सा बंदा है और भागी जा रहा है। उसे पता होता है जब वो मेडल जीत के विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता है तो सब उस पर फख्र करते हैं, वो बेशक काला है या गोरा है, वो कहते हैं बस जी चैंपियन तो ये है।
बस उसके साथ वही लोग जो उस पे हंसते हैं वही तस्वीरें बनाने के लिए आगे पीछे भाग रहे होते हैं। सही, थैंक यू। आपने बस हमारा साथ देना, आपने जबान इंशाल्लाह कर दिया, ये इंशाल्लाह याद रखें। इंशाल्लाह। और एक और आखिरी बात शहबाज भाई मैं आपसे करना चाहूंगा कि हर प्लेयर की ना एक खासियत होती है, खसूसियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप में जो मैंने चीज देखी है वो ये है कि आपकी मेंटेलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। गो कि आप एथलेटिक्स से, प्रॉपर ट्रेनिंग से दूर हैं काफी अरसे से, आप जॉब करते हैं बाहर, वहां आपका टाइम जाया होता है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रेस लगाते हैं उस वक्त दिमागी तौर पे मैंने देखा है कि आप काम होते हैं, सुकून में होते हैं। ये क्या है, ये कैसे है? एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी स्टडी भी है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है और अच्छा थोड़ा स्ट्रोंगनेस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर ये चीज़ हासिल होती है। वो एक्चुअली स्टडी ये है कि मोटिवेशनल वर्ड्स बंदा स्पीचेस सुनता है, मैं मोटिवेशनल वर्ड्स भी लिखता हूँ इंग्लिश में, बहुत लाइक किए जाते हैं। तो जब बंदा खुद दूसरों को मोटिवेट करना चाहता है तो जाहिर बात है आपके अंदर थॉट्स आएगी, अगर मैं किसी और को मोटिवेट करूंगा तो उससे पहले खुद मुझे इंटरनली मोटिवेट होना चाहिए। तो वो अगर किसी को मोटिवेट करेंगे तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन स्ट्रोंग होगी। यही वजह है कि फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं जैसे वर्ल्ड चैंपियन हो गया, एलिड किपचोगी हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, उनके जो मोटिवेशनल वर्ड्स पड़े हुए हैं, अगर जाके आप उनको देखें, उनको रीड करें, स्टडी करें या सुने, आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे 2 दिन पहले 2 दिन भी नहीं बल्कि हफ्ता पहले रेस से बात हुई थी। आपने कहा था यार मैं आउट ऑफ ट्रेनिंग हूँ, मैं सिर्फ अपने दिमाग की बेस पे लगाऊंगा, कोशिश मैंने करूंगा। कहा था। सही, इसका मतलब है ये आपने सारी अपनी जो पेस बरकरार रखी है, ये वो इसमें सिर्फ आपके दिमाग का ज्यादा कमाल था। चलें जी, एक और बात भी सुन लें कि ये सारी दिमाग की गेम होती है। टांगे साथ नहीं देती, टांगे नहीं भागती, इंसान का दिमाग भागता है। और आखिर में मैं हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट खिलाड़ी उस्ताद अयाज साहब, अल मारूफ जिंद वड्डा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कि बहावलपुर की एक पहचान है, कि वो भी अपने अल्फाज से हमारी इस छोटी सी काविश को मुनव्वर करें। सर क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरकान भाई ने आज बहुत ही अहम ऐलान किया एकेडमी के हवाले से और ख़ास तौर पर एथलेटिक्स के हवाले से। यकीनन ये आज़म की, इरादे की, मुस्तकिल मिजाजी की, साबित कदमी की गेम होती है। इसमें इंसान जो घबरा जाता है वो पीछे रह जाता है और जो डट जाता है वो हमेशा के लिए सफ़े अव्वल में रहता है और बिलाखिर कामयाबी से हमकिनार होता है। इकबाल ने क्या ही खूब कहा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये जो पुख्ता इरादा है, मुसम्मम इरादा है, बुलंद हौसला है, ये कामयाबी की जानिब पहला कदम है और यही कामयाबी की अलामत है। और मैं यूं कहूँगा कि एकेडमी जो है वो हमारे लिए, बहावलपुर के लोगों के लिए एक ऐसी एकेडमी है जो यहाँ से शाहीन पैदा करेगी। और इकबाल ने कहा कि झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। और ये शाहीन है, शाहीन की ये खूबी होती है कि वो तेज निगाह है, बुलंद परवाज है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता ना करता है, बल्कि ये अपना शिकार खुद करता है, ऊपर रहता है, चट्टानों पे जिंदगी बसर करता है। इसलिए ये जो आज खिलाड़ी बैठे हैं, फुरकान भाई समेत, रियाज भाई समेत, शहबाज भाई समेत, ये सारे के सारे बहावलपुर की पहचान और ये शाहीन हैं। इंशाअल्लाह हम इस अज़्म के साथ डटे रहेंगे कि यहाँ लोग आएँ, बच्चे आएँ, इस एकेडमी का हिस्सा बने और एथलेटिक्स में अपना नाम पैदा करें, दुनिया की सतह तक जाएं, दुनिया में इनका नाम रोशन करें। यहाँ भी बड़े सेहतमंदाना सरगर्मियों का जो है वो इंतज़ाम और इंतज़ाम होना चाहिए और लोगों को अच्छी सरगर्मियों का मौका मिलना चाहिए। अरब का एक माकूला है, अल अक्ल सलीम फी जिस्म सलीम, तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त अक्ल होती है। तो वो तंदुरुस्त अक्ल भी है, तंदुरुस्त जिस्म भी है। इससे इंसान जो है वो बुराइयों से, जराइम से बच जाता है और उसके पास एक हदफ होता है, एक टारगेट होता है, एक निशाना होता है जिसको वो अचीव करता है। वो बुराइयों से बच के अच्छाइयों की तरफ और नेकी की तरफ गामजन होता है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।
और आखिर में नाजरीन एक और बात भी आपको बताता चलूं कि हम जेएस स्पोर्ट्स बहावलपुर जनाब शाहिद गुज्जर साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मिनी मैराथन से पहले जो बहावलपुर में मुनक्किद की गई हमें फुल सपोर्ट किया, हमारे खिलाड़ियों को टी शर्ट्स दी, हमारे खिलाड़ियों को ट्राउजर दिए और उनकी तरफ से एक खाना भी पेंडिंग है। वो उन्होंने मुझे कहा है कि जब आप कहेंगे मैं और आपके तमाम खिलाड़ियों को बुला के उन्हें सर्व करूंगा। तो शायद भाई ये भी मैंने वीडियो में बोल दिया है, आप सुन लें, खाना पेंडिंग है, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हमारे खिलाड़ियों का जोर लगा है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।